دوستو سلام مسنون، اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ کابل کے قریب پہنچے طالبان، غزنی، ہرات اور قندھار سمیت 19 صوبوں پر قبضہ۔ طالبان نے افغانستان کے 3 اہم شہروں غزنی، ہرات اور قندھار پر قبضہ کر لیا، جس کے باعث دارالحکومت کابل کافی حد تک ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ہلاکت خیز لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، اور افغانستان کے 34 میں سے 19 صوبائی دارالحکومت طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں، جبکہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہروں غزنی اور ہرات پر قبضے کے بعد دارالحکومت کابل کے محاصرے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان صوبائی دارالحکومت پل علم میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا ہے۔ صوبہ لوگوں کی سرحد کابل کے صوبے سے ملتی ہے، اور پل علم سے سیدھی سڑک دارالحکومت کابل جاتی ہے۔ جمعے کو ہی خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے قندھار کی مقامی حکومت کے ایک اہلکار نے تصدیق کی تھی کہ گزشتہ رات فوج سے جھڑپوں کے بعد طالبان نے قندھار شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے جمعے کو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ زابل اور ارزگان کے صوبے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر زابل اور رازگان کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوبی شہر اور صوبہ ملمدکار دارالحکومت لشکرگاہ بھی طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہرات میں حکومت کا ساتھ دینے والے ملیشیا کمانڈر اسماعیل خان بھی ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر طالبان لشکر کا حصہ بن گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسماعیل خان کی طالبان کے ہمراہ تصاویر بھی گردش کر رہی ہے۔ اسماعیل خان وہ کمانڈر ہیں جنہیں ہرات میں طالبان کے خلاف لڑائی کے دوران مکمل حکومتی حمایت حاصل رہی ہے، اور انہیں ہرات کا شیر کہا گیا تھا۔ ادھر امریکہ نے افغانستان سے اپنے سفارتی عملے کی واپسی کے لیے تقریباً 3000 فوجیوں کو بھیجا ہے، جبکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر افغانستان میں 600 فوجی تعینات کرے گا، جو اس کے شہریوں کی وطن واپسی میں معاونت کریں گے۔ ملک میں غیر ملکی افواج کے 20 سالہ آپریشن اور انخلا کے بعد طالبان نے تیزی سے کئی شہری علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے شمالی افغانستان کے اکثر علاقوں میں قبضہ کر لیا ہے۔ کانپور مسلمان ای رکشہ والے کی پٹائی کا معاملہ، اقلیتی کمیشن کا پولیس کمشنر کو نوٹس، رپورٹ طلب۔ قومی اقلیتی کمیشن نے اتر پردیش کے کانپور میں ایک مسلمان رکشہ ڈرائیور کی مبینہ طور پر پٹائی کے جانے اور جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے معاملے میں جمعے کو شہر پولیس کمشنر کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کی۔ کمشنر کے وائس چیئرمین
आतिफ रशीद के हुक्म पर कानपुर सिटी के पुलिस कमिश्नर नोटिस जारी किया गया और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। आतिफ रशीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल होने वाले वाक़े का अक़लियती कमीशन ने मेरे हुक्म पर फ़ौरन नोटिस लिया और कानपुर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिस में ये मालूमात मांगी गई हैं कि पिटाई करने वाले मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों की गिरफ़्तारी हुई है और उनके ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मामला दर्ज हुआ है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का माहौल बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। अक़लियती कमीशन ने पुलिस से ये सवाल भी किया कि जिन पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में पिटाई हुई उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। इस वाक़े के वक्त मुतअस्सरा की बच्ची के हुकूक़ अतफ़ाल की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया गया। वाज़ह रहे कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में 45 साला इसरार अहमद को कुछ लोगों के ज़रिए पीटते और उससे जय श्री राम का नारा लगवाते देखा गया है। वीडियो में अहमद की नाबालिग बेटी अपने बाप को बचाने की कोशिश करते हुए और रोते हुए हमलावरों से वालिद को नहीं पीटने की गुजारिश करते हुए दिखाई दे रही है। दरी असना पुलिस का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद से वाबस्ता ये शख्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में आज के इदारिया में कहा गया है, जमहूरियत के लिए अपोजिशन ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी को लगने वाला गुहन हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। मरकज़ का आमिराना अंदाज़ हुक्मरानी हो या पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन अरकान से मार्शल की हाथापाई, ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से मर्द मार्शल की मुबैना छेड़छाड़ या फिर ट्विटर की जानिब से कांग्रेसी लीडरों का अकाउंट मुअत्तल करना, ये जमहूरियत की खुली तज़लील और इज़हार राय की आज़ादी पर ताकत का ऐसा हमला है जिसे दुनिया के किसी भी महज़िब माशरे में गवारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में न सिर्फ ये सब हो रहा है बल्कि हुकूमत इन वाक़यात का सियासी फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को 10वें मुहर्रम के रोज़ का एहतिमाम करना चाहिए। नई दिल्ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल में 12 महीने बनाए हैं और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन हुर्मत वाले महीनों में बिलखुसूस अपने ऊपर जुल्म वजूद करने से रोका गया है और माह मुहर्रमुल हराम भी उन्हीं महीनों में से एक मुक़द्दस महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के सौम को रमज़ानुल मुबारक के सौम के बाद सबसे अफजल करार दिया है। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ ही को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म सितम से नजात दी थी। इस वजह से यहूदी इस दिन रोज़ा का एहतिमाम करते थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस मौके से शुक्र अदा करने की ज़्यादा हक़दार हैं। लिहाजा मुसलमानों को भी 10वें मुहर्रम के रोज़ा का एहतिमाम करना चाहिए, लेकिन यहूदियों के तरीक़े की मुखालिफत के तौर पर
एक रोज़ा मज़ीद रख कर अपना तरीक़ा मुख्तलिफ कर लेना चाहिए। इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख़ के साथ 9 तारीख़ को भी रोज़ा का अहतमाम करना मुसलमानों के लिए मसनून है और इसकी वजह से एक साल पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इन ख़यालात का इज़हार अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली के सदर मौलाना मोहम्मद रहमानी सनाबली मदनी ने सेंटर के जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ जोगाबाई में खुतबा जुमे के दौरान किया। मौलाना मुहर्रमुल हराम और यौम आज़ादी पर गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का हिस्सा किसी से कम नहीं। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मुफक्कर मिल्लत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने जुमे की नमाज से क़ब्ल ख़िताब में मुसलमानों से अपील की कि माह मुहर्रम का अहतमाम करें और नफली नमाज, रोज़ा और सदक़ा खैरात का अहतमाम करें। उन्होंने कहा 15 अगस्त को जश्न आज़ादी है जिसे हर साल मुसलमान और हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के लोग वतन परस्ती के जज्बे के साथ मनाते हैं। मुल्क को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का हिस्सा किसी से कम नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म से ख़ुसूसी तौर पर अपील की कि अक़लियतों और ख़ास कर मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मुफ्ती मुकर्रम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़त्ल आम के नारे लगाने वाले वायरल वीडियो में साफ नज़र आ रहे हैं। उनके इश्तिआल अंगेज़ नारे वीडियो में साफ सुने जा सकते हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदुस्तान में किसी भी जगह और किसी भी वक्त भयानक फसाद भड़क सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं मुस्लिम नस्ल खुशी का सानिया रूनुमा हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा। रोहिणी सेक्टर 25 पैकेट 2 में वाक़या दरगाह मदद अली पर कुछ शरपसंद लोग द हिंदू संगठन के बैनर तले 2 अगस्त को जमा हुए थे। उन्होंने अपने मजहबी नारे लगाए और मुसलमानों को इंतबाह दिया कि 10 दिन के अंदर उस जगह को खाली कर दें, हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। मुफ्ती मुकर्रम ने हुकूमत हिंद और पुलिस से पुरज़ोर मुतालिबा किया कि इन शरारती लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो वीडियो उन्होंने वायरल की है उसमें सब लोग साफ नज़र आ रहे हैं और मुसलमानों की जान व माल नीज़ दरगाह की हिफाजत की जाए। मुफ्ती मुकर्रम ने मसले की इत्तिहाद पर ज़ोर देते हुए कहा कि सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में हालात रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। दोस्तों, ख़बरों के बाद अक़वाल ज़र्रीन भी ज़रूरत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत के लिए अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो कोई खूबसूरत हो नेक सीरत भी हो। काम की चीज़
اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ واقعی بہت اچھی باتیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خدا کرے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اچھا تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔